তামুলপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত কোবিন্দে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সামৰণি অনুষ্ঠান আজি সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ আৰু অধিৱেশনত উপস্থিত ৰাজ্যপাল গৰাকী আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও जोंनि गेजेराव जोंनि हादरगिरि मानाव गेदेर रामनाथ कोविंद सार बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैबाय. Now I request our esteemed colleagues to felicitate our chief guest. We are going to felicitate our chief guest, Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji. The President of Bodo Sahitya Sabha and Chief Executive Member of the BTR will felicitate our Honorable Chief Guest, the Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji. Dayo जोंनि हादरगिरि मानाव गेदेर रामनाथ कोविंद बिथांखौ BTR नि चिफ बिथाङा बरायदों आरो लोगोसे बर' थुनलाइनि आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा को बरायदों. आरो लोगोसे जोंनि आर'नाइखौ मोजाङै दानानै जोङो बिथांनो बेखौ होदों. Thank you. Sabaikor Thabai. Now we are going. Thank you. Sabaikor Thabai. Now we are going to felicitate our First Lady, Madam Sabita Kovind ji. I request our esteemed colleagues to felicitate our First Lady, Madam Sabita Kovind ji. Thank you so much. Now, President of Bodo Sahitya Sabha will extend his welcome speech. I request Sri Toren Boro sir to extend his welcome speech. खुलुमबाय नमस्कार गोजोन फोथाराव खुंनाय 61थि बोसोरारि जुथुमायाव नुजाफैनाय जोंनि गाहाय आलासि मानगोनां हादरगिरि Mr. Ramnath Kovind Nongthang, respected our chief guest,
His Excellency President of India, Sri Ramnath Kovind ji, Assam Hadorsani Rajya Benggiri Professor Jagdish Mukhi Nongthang, Assamni Dynamic Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Nongthang, Meghalaya Gibi Montri Manganang Musri Conrad K. Sangma Nongthang, Sikimni Gibi Montri Musri Prem Singh Tamang Nongthang, Assam Bidhan Sabhani Speaker Eba Bungtigiri Musri Biswajit Deimari Nongthang, BTR ni CEM Musri Pramod Boro Nongthang, Assamni Cabinet Minister Musri UG Brahmo Nongthang, Rajya Sabhani MP Musri Rangara Nazari Ara All Bodo Students Union Tamhinba Dularai Boro Paresa Patni Afadgiri Musri Dipen Boro Nongthang, all esteemed dignitaries present in the meeting, media persons and ladies and gentlemen, I on behalf of Bodo Sahitya Sabha, Bodo community and people in general of Bodoland area extend my hearty welcome to the 61st annual conference of Bodo Sahitya Sabha, Bodo Thunlai Afadni, Be Doji Sethi, Dayas, other dignitaries present in the meeting. Jobnayaw, Nongthangmon Boynibo Modot Are, Onsainayjung, Boro Rao Thunlai Are, Boro Thunlai Afada Tangnane Tagan, Beko Mijing Kalamnane Angni, Be Borai Bibung Tuku Esyonu Pujubai, Are Jungha, Boy Jabarganjisam Batra, First Lady of India, Madam Boy Sopidum. I also welcome the first citizen, lady citizen of India, Madam. Thank you very much. Gojanthang, Sabaikor. Sabaikor Thabai, Manau Gedet Boro Thunlai Afadni Afadgiri Bitangnisim, Dayo Dongo Borophorni Somaina Romaina Bardi Sikla Musanai Dintifungnai. Now we are going to present a beautiful Bodo traditional dance which is called Bardai Sikla. The Bardai Sikla dance is one of the most popular dance among the Bodos. Dayo bitangmanku musafirni takai ang khawlainai jabai. Hello. Sabaikor Thabai, Bardai Sikla Musana Dintifungnai takai. Thank you for performing the beautiful Bodo traditional dance. Now I request Sri Pramod Boroji, Chief Executive Member, Bodoland Territorial Region, to address. खुलुमबाई, बोडो साहित्य सभा की 61वें वर्ष की तामुलपुर बीटीआर असम के ये विशेष सत्र में महामहिम भारत के राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी को मैं स्वागत करता हूं। भारत की आदरणीय प्रथम महिला नागरिक मैडम कविता कोविंद जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस मंच पे असम के राज्यपाल माननीय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विश्वजीत दैमारी जी, असम, भूटान, मेघालय, बांग्लादेश और नेपाल से आए हुए अतिथिगण, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण और सम्मानीय व्यक्तिगण, असम और बोडोलैंड के वरिष्ठ नेतागण, बोडो साहित्य सभा के आदरणीय अध्यक्ष तरेन बोरो जी, 61 बोडो साहित्य सभा के ये सत्र में आए हुए सभी सदस्य एवं प्रतिनिधि का मैं स्वागत करता हूं। भारत सरकार, असम सरकार और बीटीआर सरकार के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, बोडो भूमि और असम के आए हुए भाइयों बहनों,
महामहिम जी, मैं आपके सामने बौद्ध समाज के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे बौद्ध समाज, संस्कृति और परंपराओं के बारे में पहले से ही अवगत है। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि बौद्ध जाति की उम्मीदें और आकांक्षाएं के बारे में भी आपको जानकारी है। महामहिम जी, बौद्ध साहित्य सभा 1962 में अपने जन्म से ही बौद्ध समाज के हर एक क्षेत्र में नेतृत्व देते आए हैं। इसके कारण आज समग्र बौद्ध जाति बौद्ध साहित्य सभा को अभिभावक के दर्जा देते हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल बाद देश एक नया ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी की सभी जाति जनजाति को एक साथ आगे ले जाने की एक सोच है, और यही बातें भारत के हर क्षेत्र के सभी समुदायों को अपने पहचान, अपने भाषा और संस्कृति को सुरक्षित मानकर जीने की नई ऊर्जा मिली है। महामहिम जी, बोडोलैंड को काफ़ी वर्षों तक भारत में एक हिंसा की क्षेत्र माना जाता था। असम के वर्तमान के जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में बोडोलैंड में शांति स्थापित करने का एक नया प्रयास किया गया था, और इन प्रयासों को सफलपूर्वक रूप देना आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से मुमकिन हुआ। आज बोडोलैंड में 4 दशक के बाद पूर्ण शांति आ गया है। बोडोलैंड में बौद्ध समाज के साथ सभी समुदायों को, सभी लोगों को सद्भावना, प्रगति और विकास के नए मार्ग पर चलने का सुनहरा अवसर मिला है। मेरा मानना है कि इस सफर में अच्छे शुरुआत ने एक नए बोडोलैंड की संभावना को बहुत मजबूत कर दिया है। महामहिम जी, आप जानते हैं कि पिछले 40 सालों में बौद्ध समुदाय ने बुरे हालत और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण किया है। मैं ये पवित्र मन से और आपके गरिमामय उपस्थिति में बौद्ध भाषा संस्कृति की विस्तार और प्रगति के लिए जिन्होंने भी अपने जान और बहुमूल्य समय दिया है, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। बौद्ध भाषा को संविधान की 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त करने के साथ बौद्ध समुदाय को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक अधिकार प्रदान करके अपकृत करने के लिए हम सदा भारत और असम सरकार से आभारी रहेंगे। आज बौद्ध भाषा असम के एसोसिएट लैंग्वेज बन गया है और इसे स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ा जा रहे हैं। आज बोडो भाषा के पत्रिकाएं और पुस्तकें भारी मात्रा में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रकाशित की जा रही है। बोडो लेखकों को राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य अकादमी और साहित्य सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वर्षों से बौद्ध भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महामहिम जी, आपने आज ये कार्यक्रम में आके बौद्ध साहित्य सभा के साथ साथ बौद्ध जाति और क्षेत्रों में रहने वाले सबको अपना जो प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार सुखी रहे और भगवान आपको देश के हित में और काम करने के लिए दुगना क्षमता दे। Mahamahim ji, with your due permission, I would like to conclude by quoting a beautiful poem composed by yourself, a poem which so truly reflects the spirit of today's occasion. I quote, "Nature promotes mutualism. The flower nourishes the bee. The river water quenches the thirst of all living beings. And tree provides a welcome home to so many birds and animals. There is a rhythm to this togetherness.
धन्यवाद। जय हिंद। Thank you. Now I request Honorable Chief Minister of Meghalaya, Sri Conrad Sangmaji, to extend his speech.